Hello friends, good morning to all of you. Today I am going to revise lesson number 16, Wisdom at Last. Now this is a small play, a kind of a drama, kind of a skit. Let us start. Scene 1. Vivek and Vinod, the two boys aged 13, are sitting in the corner in a park. Many other children are playing around. Vivek, look Vinod, I don't like going to school. I don't do well there. Vinod, my grades are also very poor. I too don't want to go to school. Vivek, I don't want to study when I stand up to answer anything or laugh. I think Mrs. Irene, our teacher, keeps a grudge against us too. Papa and Mummy are also not happy with me. Now, this Vivek and Vinod, both of them are students and they are of 13 years old. They both are sitting in the school garden, in the corner of a tree. They are sitting under the tree. They are sitting, and rest of the children are playing there. And they both talk that they are what you call. Vivek says that he doesn't like the school. Vinod also says that his marks are also not good, and he also doesn't want to come to school. Vivek says that whenever he stands up to read or to answer any question, then all the children laugh at him, maybe because he may be having some problem of answering the questions and all. Vinod also says that the teacher, Mrs. Irene, she is having some grudge against her. She may not like her. That's what Vinod says, that Mrs. Irene doesn't like both of us, and that's why she always makes us stand. She always gives us punishment. And Vinod's dad and mom, they are also not happy with his marks, whatever he gets. Now Vivek, Mrs. Irene always pulls our legs. I have heard that our report cards are being prepared. I know both of us are going to get very poor marks. Listen Vinod, I don't like going to school anymore. Papa and Mummy also scold me for getting poor marks. I don't like my home also. I want to run away. My position is no better, both at home and at school. Let's run away together. But how? Now, Vivek also accepts, he also says, agrees with that Mrs. Irene has got something with us. She also pulls our leg. दोनों के दोनों बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों को स्कूल अच्छा नहीं लगता है, दोनों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, और दोनों यहाँ से मतलब घर पे भी दोनों के माता पिता उनको डांटते हैं, डपटते हैं, उनको उनके मार्क्स को देख के उनको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं. और जो मिसेस आयरिन है वो ये दोनों विवेक और विनोद उनसे बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि मिसेस आयरिन जब देखो उनको सज़ा देती रहती है, उनको परेशान करती रहती है. तो इसी वजह से दोनों बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि दोनों कहते हैं कि मेरे घर पे भी पापा मम्मी मुझे परेशान करते हैं, मेरे पापा मम्मी मुझसे खुश नहीं है और डांटते रहते हैं. तो इससे अच्छा क्या है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं. तो विनोद पूछता है, बट हाउ, कैसे? Vivek, I have a plan. Listen carefully. Tomorrow, bring a pair of clothes instead of books in your school bag. Don't go to school. Come to the place behind the Melody Talkies at 8 a.m. We'll change there, go to the railway station and leave the place by the first up train. Why do you keep mum? Yes, I will reach behind the Melody Talkies. Goodbye then. They shake hands and depart. तो विवेक बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि कल तुम जब आओ स्कूल में तो अपने स्कूल बैग में किताबों की जगह अपने घर के कपड़े रख लेना, और मेलोडी टाकीज जहाँ वहाँ पे 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक आ जाना. मैं भी वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. जब वो अपना और वहाँ से हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे, कपड़ा सा बदल के रेलवे स्टेशन जाएंगे, और वहाँ से जो पहली ट्रेन मिलेगी, अप ट्रेन जो हमको मिलेगी, उसमें हम बैठ के चले जाएंगे. तो वो विवेक पूछता है, तुम चुप क्यों हो? तो विनोद भी बोलता है, ठीक है, मैं मेलोडी टाकीज पहुंच जाऊंगा. तो बोलता है, ठीक है, अभी हम चलते हैं, कल सुबह 8 बजे मेलोडी टाकीज में मिलते हैं. एंड दे बोथ गो अवे. Scene 2. A room inside a big godown. A man with a long beard is sitting on a chair. He is talking with someone on his cell phone.
Two boys around 18 years bring Vivek and Vinod to the room. एक अब सेकंड सीन है, यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा गोदाम है, उसमें एक कमरे में एक आदमी बैठा है, दाढ़ी वाला एक आदमी बैठा है। अब वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। तभी एक 18 वर्षीय लड़का विनोद और विवेक को उसके पास लेके आता है। द फर्स्ट बॉय, बॉस, द मैन स्टॉप्स टॉकिंग ऑन फोन एंड टर्न्स टू देम। हु इज़ विवेक? आई एम विवेक। गुड, एंड यू आर विनोद। गुड बॉयज। इट इज़ डेंजरस टू वॉक अराउंड हियर एंड देयर इन दिस सिटी. You will be caught by the police. But don't worry, you can stay here. You shall do me a favor. What shall we do for you, sir? That I will let you know. First you take rest for some time. Munna, take their bags, show them the room. Give them something to drink and ice cream too. Nobody will know about you. You are safe here. They go out flanked by the other boys. तो पहला आदमी पूछता है बॉस, तो बॉस पूछता है इसमें विवेक कौन है? तो बताता है कि मैं हूँ। तो बोला ठीक है, अगर तुम विवेक हो और ये विनोद है। देखो बच्चों, अकेले घूमना अच्छी बात नहीं है शहर में, वो भी इतने बड़े शहर में अकेले घूमना ठीक बात नहीं है, और पुलिस तुमको कभी पकड़ सकती है। इसलिए अब तुम मेरे पास आ गए हो तो तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग एकदम सही जगह पे हो और सेफ हो। तो विवेक पूछता है कि हमें करना क्या है? जब बॉस बोलता है कि तुम लोग मेरे लिए काम करना, तो विवेक पूछता है कि हमें क्या करना होगा? तो बॉस बोलता है मैं तुमको बाद में बताऊंगा, अभी तुम लोग थके हो तो जाके थोड़ा आराम करो। और जो मुन्ना है उसको बोलता है मुन्ना इन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए दो और साथ में आइसक्रीम भी देना, और तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग यहाँ पे सेफ हो। एंड दे ऑल गो। बॉस, मुन्ना, यस बॉस, द आइसक्रीम विल डू द वर्क. They will be asleep in 5 minutes. Search their bags and pockets, take out money, try to find their address. Yes, boss. He goes out. 3 persons enter with suitcase. Boss, the packets are ready, but the new commissioner has tightened the security. We have to dodge the police and send the packets to Barnyard, who will wait in the ship. Don't worry, I will make arrangements for that. The cell phone rings. The boss attends the phone call. He gets very nervous after talking on cell phone. Boss, Munna, the new commissioner has ordered a raid on this godown. We have to escape soon. Hurry up, take the suitcase. Don't leave any proof. Escape. They all run out and disappear. Now, they go with that boy. Now, boss calls Munna and tells that don't give everything, just give ice cream and it will happen. Why? Because in the ice cream there was a drug. वो बोलता है कि उनको बस आइसक्रीम दे देना, वही काम कर देगा अपना, क्योंकि इसमें नींद की गोली थी, तो उसको खाते ही वो लोग सो जाएंगे। और मुन्ना से कहता है कि उनकी पूरी तलाशी लो, जो कुछ भी उनके पास, कुछ भी पैसा वैसा कुछ भी है सब ले लेना, और अगर कोई एड्रेस है वो भी ले लेना। तभी उनका कोई दूसरा आदमी, 3 आदमी और अंदर आते हैं एक सूटकेस लेके। तो एक पहला आदमी बोलता है कि बॉस ये रहा पैकेट, सब तैयार है, लेकिन जो पुलिस कमिश्नर है, जो नया पुलिस कमिश्नर आया है, वो बहुत ही सख्त है। उसने कई जगह पे नाकाबंदी करके रखा हुआ है और उस नाकाबंदी से बच के जाना बहुत ही मुश्किल है। बर्नयार्ड तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बॉस बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसके लिए उसका जो भी है मैं कर लूँगा, मैं अरेंजमेंट्स कर लूँगा उसको पहुंचाने की। तभी फ़ोन बजता है, फ़ोन पे वो बात करता है और थोड़ा परेशान हो जाता है और तुरंत अपने लोगों को बताता है। मुन्ना को बोलता है मुन्ना, कमिश्नर ने यहाँ पे रेड मारने के लिए आदेश दिया है, सब लोग यहाँ से भागो, सूटकेस सब ले लो और यहाँ से निकलो, नहीं तो भी पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी, और कुछ भी सबूत ना छोड़ना। Third scene, the drawing room of Assistant Commissioner Mr. Y.P. Singh. He is in police uniform and is sitting on a sofa. His wife, Mrs. Singh, is also sitting there. Mrs. Singh, I feel sorry for the boys. I have talked with Vivek's mother. She hasn't got up from the bed since her son ran away. Mr. Singh, there's nothing to worry now. If they had been with the smugglers a few days more, it would have been bad. Where are the boys? I gave them a pair of new clothes. They have changed. They are having breakfast. Bring the boys. A sergeant comes along with the boys. तो तीसरे सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर वाई.पी. सिंह का घर है, उनकी वाइफ बैठी है, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। और जो मिसेस सिंह है वो बताती है कि उन्हें बहुत ही दुख हो रहा है कि जब उन्होंने विवेक की माँ से बात किया, विवेक की माँ को फ़ोन किया तो
विवेक की माँ तो जब से उन्होंने सुना कि उनका बेटा भाग गया है तब से वो बेचारी परेशान है और अभी तक मतलब बेहोशी की हाल में ही है। तो मिस्टर सिंह कहते हैं कि ये तो अच्छा है कि चिंता करने की कोई बात है नहीं है, कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो स्मगलर्स थे, जो लुटेरे थे, उनके चुंगल से वो बच गए हैं। अगर वो उनके साथ रहते कुछ और दिन तो शायद वो बड़े क्रिमिनल बन जाते। तो फिर पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, और मिसेस सिंह बताती है कि मैंने उन्हें नए कपड़े दिए थे, वो कपड़े पहन के नाश्ता कर रहे हैं। और वो एक आदमी को बोलता है कि जाके उन्हें लेकर आओ। सिट देयर बॉयज, टेल मी हाउ यू रीच दैट प्लेस। We were sitting on a bench. 2 boys had been watching us. When it was dark, they called us and took us there. Did they give you something to eat? We had ice cream there. After that, we don't remember anything. Do you know who that man in beard is? No, sir. He is a criminal and the leader of a smuggling gang. They had given you a strong drug in ice cream that made you sleep. I think they have taken your money. Yes, everything we had is gone. तो जब वो लोग बच्चे आके बैठते हैं तो कमिश्नर पूछता है, वाईपी सिंह पूछते हैं कि तुम लोग के साथ क्या हुआ। तो बताते हैं कि हम लोग स्टेशन में बैठे हुए थे और 2 लोग हमें बहुत देर से देख रहे थे। जब अंधेरा हो गया तो उन लोगों ने हमसे बोला कि आओ तुम्हें हम एक अच्छी जगह, सुरक्षित जगह लेके चलते हैं। देन दे वेंट विद देम एंड फिर वो पूछते कि आपने क्या खाया था। बोला हमें एक आइसक्रीम मिली थी जिसको खाने के बाद हमें कुछ पता नहीं है। देन सिंह सेज दैट तुम्हें पता है वो दाढ़ी वाला आदमी कौन है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं हमें नहीं पता। तो बताता है कि वो एक बहुत बड़ा ही चोर है, क्रिमिनल है और एक बहुत बड़ा स्मगलिंग गैंग का लीडर है और वो ड्रग्स सप्लाई करता है। और जो तुम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी उसमें भी एक ड्रग था जिसकी वजह से तुम लोग सो गए थे और तुम्हारे सारे पैसा वो लोग लेके चले गए। तो विनोद बोलते हैं हाँ हमारा सब कुछ वो लेके चले गए। मिस्टर सिंह, this is what happens to children who run away from home. You and your parents are lucky because we conducted the raid today. In their hands, you will have become drug addicts and criminals. Yes, you have everything. Loving parents, friends, brothers, sisters, good house. Why did you run away from home? I am sorry, I don't study. I make mischief in the class. We won't repeat this in future. तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि देखा कि क्या होता है, जो बच्चे घर से भाग जाते हैं उन्हें ये लोग पकड़ते हैं और उन्हें वो लोग चोर डाकू बना देते हैं। तुम और तुम्हारे पेरेंट्स किस्मत वाले थे कि उनके चुंगल से तुम बच गए हो और जो ड्रग था ठीक है उससे तुम बच गए हो, नहीं तो तुम लोग भी उसके एडिक्ट हो जाते, ड्रग के आदी हो जाते, फिर बाद में उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। देन मिसेस सिंह सेज दैट तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास तुम्हारे प्यारे माता पिता, प्यार करने वाले माता पिता हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सब हैं, अच्छा घर है, फिर तुम क्यों भागे। तब विवेक बताता है कि हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। पहले तो वो क्षमा मांगता है, फिर बोलता है कि हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है और मैं हमेशा क्लास में ढंग से पढ़ता नहीं हूँ, मैं बदमाशी करता रहता हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी मैं भविष्य में ऐसा काम नहीं करूँगा। The doorbell rings, the parents of both the children enter. On seeing them, the boys go and hug them. The boys start crying. Parents, thank you very much, Mr. Commissioner. We will be grateful to you throughout our life. It's all right, Mr. Sharma. I have done my duty, but you are lucky. The boys go and touch the feet of Mr. Singh. तो तभी घंटी बजती है, दरवाज़ा खोलते तो देखते हैं कि दोनों विवेक और विनोद के माता पिता आए हुए थे। वो अपने माता पिता को देखते ही दौड़ते हैं और उनके गले लग के फूट फूट के रोने लगते हैं। पेरेंट्स दोनों माता पिता कमिश्नर को धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कभी ये जो उपकार उन्होंने किया वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। मिस्टर सिंह कहते हैं कि ये तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, बस यही कि आप लोग किस्मत वाले थे कि आपके बच्चे सही सलामत आपको मिल गए हैं। और विनोद और विवेक उनके पास जाके उनका पैर छूते हैं। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।